Hello everybody. So we have started nomenclature. Okay, we have done few rules and now we will continue that. Okay, so we have done sub rule. I think 2 up to we have done how to select the carbon parent carbon chain. Now write the sub rule 3. Okay, sub rule 3. We are doing the selection of parent carbon chain. रूल इज पैरेंट कार्बन, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट सब रूल्स देख रहे हैं. तो प्लीज राइट सब रूल 3 सेज if more than one same length of carbon chain are available, if more than same length of carbon chain are available, then select the chain as parent chain, then select the chain as a parent chain that contain maximum number of substituent, or branching. So 1 2 3 4 5, here it's a 6. Then you have here 1 2 3, this is C, this is C, this is there. Okay, so if you have more than, again फर्स्ट तो ऑप्शन वही कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, बट अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेम है उस केस में यू हैव टू सेलेक्ट द चेन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग. जैसे भी let's say if you go case let's say carbon chain and number of branch or substituent, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. if you go straight गया तो again carbon chain और branch, straight गया तो 1 2 3 4 5 6 carbon chain, और then this whole will be one branching. this is whole branching. जो main chain से जो attach होगा that is one branch. this is one branch, so there is two branching here. if you go straight, if you go like this, it's 1 2 3 4 5 6. तुम इसको select नहीं किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. तो if you are going like this, so ये हो गया branch. ऐसे गया तुम 1 2 3 4 5 6, तो ये एक ब्रांच हो गया, ये एक ब्रांच, तो ऐसे भी 6 है, ऐसे 3 ब्रांच. ओके, इफ यू गो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 तो 2 ब्रांच, और ये तो यहाँ भी 6, ऐसे भी 3 ब्रांच ही है. देखना ये इफ यू गो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो 1, so if you are going like this, just see, so 1 branch 2 branch 3 4, so these are 6 4 branch. So this is correct selection of parent carbon chain. This is correct selection of parent carbon chain. Just see. Okay, if I take 1 or 2 more questions here then that will make it more clear. Let's say we have 1 2 3 4 5 6, ये इन दोनों में सेलेक्ट करो ब्रांच. तो यहाँ पे देखो कोई स्ट्रेट गया, तो यहाँ डायरेक्ट में लिखता हूँ 1 2 3 4 5, स्ट्रेट गया तो नंबर ऑफ कार्बन चेन 6 ब्रांचेस 1, ये वाला ब्रांच, ये कंप्लीट 1 ब्रांच. अगर स्ट्रेट गए दिस इज 1 ब्रांच. इफ यू गो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 1 ब्रांच, दिस इज 1 ब्रांच. इफ यू गो ऐसे तुम गए तो दिस इज 6 2 ब्रांच. सो दिस इज करेक्ट सिलेक्शन ऑफ ब्रांचिंग पेरेंट कार्बन चेन. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट में 6 1 ब्रांच 1 2 3 4 5 6, तो
यहाँ भी एक्चुअली वही है, आई थिंक सेमी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्ट्रेट तुम लोगे तो यहाँ पे एक ही ब्रांच आएगा विच इज रॉन्ग। ओके, next is this. Let's say if you take this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is there. Okay, so now if you take this 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो again यहाँ पे you have no choice other to take 9 because this contains 9 carbon, so straight will be the correct parent carbon chain. Getting this? And this is going to be important. Okay, now subrule 4. Now subrule 4, if both double and triple bond, if both double and triple bond and if both double and triple bonds are present and there is a choice in between both the double and triple, then double bond should be given the highest priority. After lowest summation rule, after lowest summation, again lowest summation काफी बार आएगा. If both and double and triple bond is present, so first you have to select lowest summation rule, and if that is same from both ends, then double bond should be given higher priority. Like if I take some examples here, see let's see, first of all इसमें select कैसे करेंगे, both double and triple bonds, and then there is a choice in between. तो देखो यहाँ पे पहला तो parent chain selection कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, if you go straight number of carbon chain is 5 and multiple bond is 2 here, multiple bond is 2 here. If I go this way 1 2 3 4 5 6, so your number of carbon chain is 6 and multiple bond is 2, so this is the correct selection of parent chain. Okay, तो पहला तो हमेशा वही देखना है कि always you have more number of carbon chain in a given parent, so that continuous carbon chain will be your parent chain. That is always there, remember it. Next is, if I take next example, that will make it more clear. One, two, three, four, five. 1 2 3 4 5. This is there. There is here, it's a double bond. You can see here, if you go straight here, straight, so number of carbon 1 2 3 4 5, 5 multiple bond here 2. If you go this way 1 2 3 4 5, number of 5 multiple bond here also 2. तो यहाँ पे चॉइस है तुमको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो वही है उसमें कि
यहाँ पे देखो लोएस्ट समेशन रूल, तो अगर चॉइस है बिटवीन दीज टू, पहला तो अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे दोनों में सेम है, देन दिस विल बी द करेक्ट सिलेक्शन. तो डबल बॉन्ड शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. ओके, so these are the some important rule that we have learned, and here after this, once we have learned it, once we have selected the parent carbon chain, after that the name of parent, what it will be. Okay, we have done selection of parent carbon chain. So if here number of carbon in parent chain and name. Okay, so if number of carbon parent chain is 1, this is written as meth, 2 eth, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 dodec, 11 undec, 12 is dodec. तुमको यहीं तक करना है, 12 तक एटलीस्ट तुमको जानना चाहिए. तो ये पेरेंट चेन का इनिशियल नेम है. ओके, इफ पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट लेंगे, 5 है तो इन. उसके बाद क्या आएगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर, बट दिस विल बी द नेम. ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर बी. तो फर्स्ट रूल हो गया, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. रूल नंबर बी इज रूल बी, दैट इज नंबरिंग. नंबरिंग रूल. इसमें फिर सब रूल 1. फर्स्ट सब रूल क्या होगा नंबरिंग रूल में, इज राइट, स्टार्ट द नंबरिंग in Arabic numerals. Start the numbering in Arabic numerals in such a manner that main functional group followed by multiple bond followed by substituent followed by multiple bond followed by substituent gets lowest numbering. Least नहीं, lowest. Lowest means 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, least means always 1. So यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, so priority order will be functional group, multiple bond, substituent, branch. Let's take few example. It will make it more clear to you. Let's take very simple example. Okay. यहाँ पे source तो यहाँ पे तुमको अभी नंबरिंग देना है, मतलब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इसमें सिर्फ सिंगल ब्रांचिंग है. तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 4 5, दिस इज द नंबरिंग. द ब्रांचिंग शुड गेट लोएस्ट नंबर. ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से 1 शुरू करना है, यहाँ से 1 नहीं शुरू करना, अपने को लॉन्गेस्ट चेन लेना है, उसमें ब्रांच लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, उसमें ब्रांचिंग को
लोएस्ट नंबर देना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. So again, if you go from this side, so 1 2 3 4 5 6. So branching is getting fourth number. If I go from right to left, left to right, so 1 2 3 4 5 6. So this red is correct, black is wrong. So branching should get lowest number. यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे मल्टीपल है ब्रांच, उस पर हम आएंगे बाद में अलग से, लेकिन सिंस आया है तो कर लेते हैं। किसी ने ऐसे किया 1 2 4 5 6 7. अगर मल्टीपल ब्रांच हो तो वी गो फॉर लोएस्ट समेशन रूल। मल्टीपल ब्रांच हो तो लोएस्ट समेशन रूल। फॉर ग्रीन समेशन विल बी व्हाट, थर्ड पे ब्रांच है तो 3 प्लस 4, 5 पे 2 ब्रांच है तो हम लोग 5 प्लस 5 लेंगे तो 10 13 17. फॉर रेड, रेड के लिए 3 पे 2 ब्रांच है, 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 9 और 16. सो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तो मल्टीपल ब्रांचिंग हो तो उस केस में तुमको लोएस्ट समेशन रूल फॉलो करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टेक सम स्पेसिफिक एग्जांपल, important example. Like here we have, so let's write it down. This is Cl, this is C, Br, Br. Now this includes functional group, multiple bond, substituent. देखो यहाँ पे लास्ट वाले केस में सिर्फ substituent था. यहाँ पे देखो, यहाँ पे multiple bond है तो the longest continuous parent chain should contain multiple bond. ये सब ब्रांच है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो देखो ब्रांचिंग तो अपना यही हो गया, ब्रांचिंग ऐसे होगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. ब्रांचिंग इज लाइक, सॉरी पेरेंट चेन इज लाइक दिस. तो नंबरिंग द फंक्शनल ग्रुप्स में है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5. सो दिस इज द नंबरिंग. और हमेशा मल्टीपल बॉन्ड हमेशा इट शुड कम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. ऐसा नहीं कि ऑलवेज 1 2 2 3 3 4. ऐसा नहीं कि 3 और 5 के बीच में है, 1 और 3 के बीच में नहीं. So multiple bond should always come between 2 consecutive numbers. तो यहाँ पे आ रहा है multiple bond is between 1 and 2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे multiple bond है तो यहाँ पे parent chain तुम्हारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये होगा. तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो तो this is 1 2 3 4. So this is branch. parent chain को लग के जो कुछ भी है all are branch. ओके, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो दिस शुड गेट लोएस्ट नंबरिंग. जब इधर से करोगे तब वो लोएस्ट आएगा 3 4 5. नाउ ऑल आर ब्रांच. ओके, तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन यू हैव ब्रांचिंग, सब्स्टिट्यूएंट. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस. वो यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ तो और कोई स्ट्रेट चेन ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3 4 5. इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट नंबर. अगर दोनों साइड से सेम है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दोनों साइड से सेम है, देन गो फॉर मल्टीपल बॉन्ड. तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ग्रीन, फॉर ब्लू 1 and 4 पे है, 1 पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 4 पे. जब ऐसे गए तो यहाँ भी 1 पे, यहाँ भी 4, तो वो भी सेम है. अगर
अगर दोनों सेम है, मीन्स फंक्शनल ग्रुप का भी पोजीशन दोनों साइड से सेम है, मल्टीपल बॉन्ड का भी पोजीशन दोनों साइड से सेम है, देन वी गो फॉर ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में इफ यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द ब्लू वन, द टू, द Cl has got lowest branching, so this is correct, then this is wrong numbering. यहाँ भी from both side this is 1 2 3 4 5 from left to right, from right to left it is 1 2 3 4 5, तो हम लोग from both side functional group is on the third carbon, then go for multiple bond. So multiple bond from this side has got lowest numbering, this is then wrong because इधर से fourth पे इधर से first पे, so that is wrong. Okay. Sub rule 2. Sub rule 2. Sub rule 2 says if main functional group contains carbon itself, if main functional group contains carbon itself, then numbering should be start from that carbon. The numbering should start from that carbon. Like here, we have just see here. So this question we have already done this. So यहाँ पे I hope सबको याद होगा. Parent chain is taken this way. This is my parent chain here. Why? Because this has got more number of substituent. 3 है. अगर ऐसा है तो 3. अगर तुमने इसको ऐसे लिया होता तो it would have been 2 only. तो functional group multiple bond. तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग भूल गए होंगे, नहीं तो पहले से फिर से देखो जो लोग भूल गए। अगर ऐसे लिया ये, सो स्ट्रेट 1 2 3 4 ले नहीं सकते, 1 2 3 ऐसे भी 4 है, तो स्ट्रेट अपने को वो चेन लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड हो। तो किसी ने ये चेन लिया, इसमें क्या था, इसमें सिर्फ 2 फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, ये और ये। अगर ऐसा है इसमें ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी है और CHO भी है, बिकॉज CHO और इसमें दिस इज मोर हायर प्रायोरिटी, तो CHO हैज बीन टेकन एज अ ब्रांच देन, सो इट हैज गॉट 3 ब्रांचेस। इस केस में मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल, इस केस में ये आता है मल्टीपल बॉन्ड, हमेशा अगर आ सकता है तो लेना है अपने को। तो यहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ से, तो इसमें इसका हायर प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड हैज गॉट हाईएस्ट प्रायोरिटी। सल्फोनिक है लेकिन वो छोड़ दो, फॉर कार्बोक्स, तो यहाँ से 1, तो दिस फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड्स कार्बन, सो दिस विल बी टेकन एज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो दिस फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड्स कार्बन, सो दैट विल बी ऑल्सो काउंटेड इन दैट। ओके, यहाँ पे ये तो रॉन्ग ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो CN है, CN includes carbon, तो we have to select the chain which contains functional group and multiple bond। तो multiple bond यहाँ पे multiple bond will be this one, तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो नंबरिंग कहाँ से, इसको देंगे 1 2 3 4, this is branch, this is whole is branch। Okay, very important। Sub rule 3
sub rule 3. For symmetrical case, sub rule 3. For symmetrical case only, for symmetrical cases only. When double and triple both are present at symmetrically same position. If double and triple both are present at symmetrically same position, then double bond gets higher priority over ट्रिपल बॉन्ड. जैसे मैंने बोला कि तुमको हमेशा लोएस्ट समेशन रूल फॉलो करना है. यहाँ भी जैसे देखो ये सिमेट्रिकल पोजीशन मीनिंग व्हाट कि दोनों साइड से सेम पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो. तो देखो यहाँ से 1 पे, इधर से 1 2 सेकंड पे, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल. तो यहाँ पे तो ऑलवेज डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड को अगेन ऐसा केस है, देन यू हैव टू गो फॉर लोएस्ट समेशन रूल. लोएस्ट समेशन मीन्स व्हाट कि 1 2 3 4 5. तो इसके लिए समेशन फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड उसको लेंगे प्लस थर्ड पे, so that is 4. किसी ने अपोजिट किया तो दिस इज 1 2 3 4 5. इसके लिए 2 plus 4 that is 6. So this is wrong, this is correct numbering. This is not symmetrical position, remember it. यहाँ पे now देखो यहाँ से भी from this side double bond is first carbon, from this side double triple bond first carbon. This is called symmetrical condition. In this case double bond should be given higher priority. यहाँ पे भी लोएस्ट, इसको हम लोग वैसे ही बोलते हैं कि अगर दोनों साइड से लोएस्ट समेशन सेम है देन डबल बॉन्ड शुड बी गिवन हायर प्रायोरिटी. सो दिस इज 1 2 3 4 5. सो दिस इज 1 plus 4 that is 5. दिस इज कॉल्ड समेशन कि जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन सबको ऐड किया, उस नंबर को ऐड किया, और जहाँ जहाँ पे ब्रांचिंग है उनको ऐड किया. ऐसे गए तो अपोजिट गए तो दिस इज 1 2 3 4 5. तो यहाँ भी 1 plus 4 5. So from this is called symmetrical position कि दोनों साइड से the summation of double bond, the carbon having double bond and triple bond is same. That is called symmetrical position. Okay, that is known as symmetrical position. यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे symmetrical नहीं है, then you have to go for lowest summation in this case. This is 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 1 plus 3 that is 4. यहाँ पे 2 plus 4 that is 6. So this is correct. This is wrong numbering. Okay. So remember it. Next is इसी का next part. सब रूल 3 का ये part 1 part B. इसका part B says कि when two substituent are present, when two substituent or branching are present at symmetrical position, then numbering should be done according to alphabetic order. Then numbering should be done according to alphabetic order. देखो यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं इतने सारे रूल्स कैसे याद रहेंगे 3B. याद हो जाते हैं तुमको. हमेशा देखो ब्रांचिंग हमेशा तुम एक तो कि हम फंक्शनल ग्रुप, यू हैव टू फॉलो फंक्शनल ग्रुप. मल्टीपल बॉन्ड मीन्स चेन सिलेक्शन should include functional group and the multiple bond. That is very important. And then substituent. We are giving number. Numbers में chain selection के बाद we are going to give the number. नंबर में हमेशा हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है, मीन्स उसको लोएस्ट नंबरिंग. हायर प्रायोरिटी मीन्स लोएस्ट नंबरिंग. एंड देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ब्रांचिंग.
ब्रांचिंग को नंबर करते हो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर लोएस्ट समेशन रूल. If lowest summation rule is same from both side, then we go for alphabetic order. That is a simple, very simple rule. Let me tell you. Let me take the example. It will make it more and more clear to you. Let's say we have C. So here, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है. BR, CL दे आर ब्रांचिंग, तो मल्टीपल बॉन्ड शुड बी गिवन लोएस्ट नंबरिंग. तो यहाँ तो कोई ऑप्शन 1 2 3 4, एक ही इसमें करेक्शन है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है. 1 2 3 4. तो देन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, उस केस में वी गो फॉर लोएस्ट समेशन रूल फर्स्ट. समेशन मतलब क्या हो गया कि जिस जिस कार्बन के पोजीशन पे जो ब्रांचिंग है उसको हम लोग सम करते हैं. दैट इज ये 2 + 3 दैट इज 5. If we give numbering from left hand side, if we go and give numbering from this side, so 1 2 3 4, so here 2 + 3 ये भी 5 है. So this is called symmetrical position. इस केस में अगर दोनों साइड से सेम है, देन वी गो फॉर लोअर अल्फाबेटिक ऑर्डर शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर. इसमें Br का B, Cl का क्लोरीन का C, तो Br का B विल हैव अ लोएस्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर. सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग, दिस इज रॉन्ग नंबरिंग. सेम ये मिथाइल, Me मीन्स मिथाइल, आज बताया मैंने. Me is called methyl. Methyl means CH3. It is full form is methyl. Okay, so methyl का M and chlorine का C. यहाँ पे देखो from both side it is symmetrically kept. So this is the correct numbering. यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो obviously 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये करेक्ट नहीं. ऐसे तुम जाओगे तो गो फॉर लोएस्ट समेशन रूल. इफ आई एम गोइंग लाइक दिस, सो नंबरिंग क्या हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5. ऐसे गए तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी वही आएगा. फिर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7. ब्रांचिंग इज ऑन थर्ड कार्बन, here on the fourth carbon from this side, so lowest summation rule will be followed. Sub rule 4, next is sub rule 4. If more than 2 substituents are present, then number should be done according to minimum number rule, minimum number rule, और मिनिमम लोकेंट रूल, और मिनिमम सम रूल. वही जो मैंने अभी किया उसी को अलग इसमें मैंने लिख के दिया है. जैसे भी 4, let's say question is this is Cl, this is NO2, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो 2 था, तो वहाँ पे वहीं पे मैंने तुमको समेशन बता दिया. 2 था तो तुमको सिमेट्रिकल पोजीशन देखना है. अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है. सिमेट्रिकल पोजीशन है मीनिंग व्हाट कि दोनों साइड से समेशन सेम है. तो 3 है मोर देन, तो यहाँ पे 3 के लिए है, तो 3 है
then you have to go for lowest summation rule. और इसमें भी अगर वो सेम हुआ दोनों साइड से, then alphabetic order यहाँ भी. तो यहाँ भी if I go from this side, so 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 plus 3 plus 6, that is 11. Okay. If I go from left hand side or right hand side, so 1 2 3 4 5 6 7, so here 2 plus 5 plus 6, that is 13. So lowest summation is this one, so this is correct, this is wrong numbering. Okay. Already मैंने उसी में तुमको बता दिया lowest summation rule में ही, जैसे ये है अभी. देखो ये, इसमें तुमको नंबरिंग करना है. एक तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, बहुत सारे वेज है नंबरिंग के. यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉन्ड हमेशा दो कंसेक्यूटिव नंबर में आना चाहिए. देखो कि कैसे नहीं आएगा. किसी ने नंबरिंग यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6, यहाँ से किया तो देखो डबल बॉन्ड इज कमिंग बिटवीन 1 and 6, so this is wrong numbering. First of all, if I take same structure but different numbering, तो किसी ने ऐसे किया कि 1 2 3 4 5 6, दिस इज रॉन्ग नंबरिंग. ऑल्दो यहाँ पे ब्रांचिंग मल्टीपल बॉन्ड को मैंने 1 दिया, लेकिन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए. डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड शुड ऑलवेज कम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. थर्ड वे ऑफ नंबरिंग, किसी ने ऐसे किया 1 2 3 4 5 6, इट इज द करेक्ट नंबरिंग. नो करेक्ट नंबरिंग है बिकॉज डबल बॉन्ड इज कमिंग टू बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर एंड डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड शुड बी गिवन लोएस्ट नंबर. तो लोएस्ट यहाँ पे 1 है, 1 पे शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, सो दैट इज लोएस्ट. नाउ लोएस्ट समेशन रूल यहाँ पे क्या है, समेशन 1 plus 6, दैट इज 7. लोएस्ट समेशन. नाउ सेकेंड, द लास्ट विच आई एम टेकिंग, ये Me मीन्स मिथाइल CH3, Me मीन्स CH3. ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे किसी ने ऐसे दिया 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड को नंबर 1 है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोएस्ट समेशन 2 plus 3, दैट इज 5. सो देखो दिस इज करेक्ट नंबरिंग बिकॉज लोएस्ट समेशन रूल इज फॉलोड हियर. Lowest summation rule is followed there. Okay. So after this, the rule number. Let's go. The C part. B we have done. A parent chain, B numbering. Now C other rules. Rule number C other rules. Other rules में हम एक दो करेंगे, then we'll go for some examples. Other rules. Rule C. That is other rules. Right, always use suffix for main functional group while use prefix in alphabetic order for substituent or branching. Okay, now IUPAC format क्या है? How do we write this? So IUPAC format कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो हमेशा तुमने भी देखा होगा कि पेरेंट का नाम हमेशा लास्ट में आता है. जैसे कुछ लोगों का नाम है, लेट्स से रोहित, श्याम,
पवार, ओके, रोहित श्याम चौहान। तो पेरेंट नेम ऑलवेज कम्स लास्ट में, तो अपना सरनेम है चौहान, देन पेरेंट नेम श्याम, देन फर्स्ट नेम रोहित। वी आर द ब्रांचिंग ऑफ आवर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हम लोग निकले हुए हैं, तो वी आर द ब्रांच। तो मेन इज पेरेंट इज और मदर एंड फादर इज माई पेरेंट्स, तो दादाजी में पेरेंट्स हैं तो उनका नाम सबसे लास्ट में आएगा, और जो ब्रांच है उनका नाम हमेशा पहले आता है, ब्रांच वाले का नाम हमेशा पहले आएगा। सो व्हाट वी यूज हियर, आईपीएससी फॉर्मेट क्या है, सो 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स plus word root, then 1 degree suffix, so 1 degree suffix plus 2 degree suffix, ओके, 2 डिग्री सफिक्स। तो इसमें हर एक का मीनिंग क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज हियर 2 डिग्री सफिक्स मीन्स सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट बट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। हियर सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट्स, लोकेंट मीन्स नंबरिंग, जो नंबर है 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूट लोकेंट बट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर। 1 degree prefix will be like here, this will be like cyclic compound में आता है cyclo, that is called 1 degree prefix, जैसे cyclobutane, cycloalkane, cyclopropane, like this. Then word root, तो number of carbon in parent carbon chain, तो ये हम लोगों ने किया है। So number of carbon in parent carbon chain, जो हम लोग अगर parent carbon chain में 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो prop, 4 है तो ब्यूट, like this. So number of carbon chain in parent carbon, that is word root, meth, prop, bute, pent, hex, hept, sept, like this. ठीक है। 1 degree prefix is called, basically we have ANE, ENE, YNE, डाइईन आएगा, डाइवाइन आएगा। So that is 2 degree 1 degree prefix. 2 degree prefix is, this is from priority table, from priority table. So priority table में जिस फंक्शनल ग्रुप का जो दिया हुआ है नाम वो अपने को यूज करना है। तो देखो ये सिंपल सा तुम्हारा IUPAC फॉर्मेट है, एंड दैट इज मोर लॉजिकल। नाउ राइट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज कॉमा बिटवीन 2 डिजिट्स, यूज कॉमा, use comma between 2 digits while use hyphen between a number and a word, like 2,4 dimethyl, तो नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आएगा। अदर रूल्स में और भी रूल्स हैं, उन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बट दीज आर द बेसिक। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नेमिंग, दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर।
go through this and we'll start with the compound having just branches, no multiple bond, no functional group. So we'll start from there. Okay, thank you, bye.